class? I hope everybody can hear me. You can indicate on the chat. We were on organism and population last time also, correct? Okay. Now, if you remember, we went to the population curve. We saw the J-shaped curve. We saw the sigmoid curve, and we were discussing about the curve. We said the J-shaped curve is not the actual curve because that curve is not happening really. It was not a real curve. While the sigmoid curve is known as the logistic curve. वो होता है, वो actual है, वो reality है. Because every population follows a lag phase, slow growth, फिर there was a log phase, and there was a fast growth, correct? Then we stopped means stationary था, क्योंकि finally population बढ़ती ही रहती, correct? Then we went to different type of interaction, and today we are beginning with that interaction table. Last time मैं टेबल पे आके रुक गई, ठीक है? वो टेबल हम आज से शुरू करेंगे, ठीक है? Class, it's a big topic. Interaction पे every year one question comes. Surely a question is coming. So we are going to look at it very carefully. Till last year, there were only 3 interactions. But now, as we saw the table, I'll be going back there. There are 6 interactions in DT. Last year तक 3 ही थे, हम 3 ही पढ़ाते थे, तो बहुत easy होता था. अभी थोड़ा उन्होंने wide कर दिया. So number of examples are increased. So we'll be going to all the 6 with examples. Examples की textbook में भी pictures है, लेकिन कम है. Slide पे मैं ज़्यादा pictures दिखा रही हूँ, so that you understand more carefully. Fine. So we are moving to the slide. Just give me 2 seconds. Sir, I need the slide. I need to share it. Just a second, ma'am. Hello. Yeah, just a second. Yeah. Yeah, now you can do it. I'm sure. Okay. Thank you so much. Just give me a second, class. Okay. One minute. Just okay. We were here. Everybody can see it. We started with the growth curve, J shape. We went to the logistic curve. We हमने discuss कर लिया था. We were on the exponential growth curve also. We saw how it is. We came here. Interaction between different. Inter पे हूँ मैं class. Intra पे नहीं. Topic intra के बारे में नहीं बोलेगा. It will talk about interaction between different species. और ये table की मैं बात कर रही थी. If you look at the textbook, a similar table is there on the book. You can see that interactions can be, I'm doing a recap, a slight recap. Positive, जिसमें benefit होगा किसका? दोनों group of organisms. Second, it can be benefit एक ही का होगा, दूसरे का ना benefit होगा, ना loss होगा. Correct? Third is proto cooperation, जिसमें दोनों का बेनिफिट होगा. तो आपको दिख रहा है थर्ड और फर्स्ट सिमिलर लग रहा है, करेक्ट? तो हम डिटेल में जाएंगे वो सिमिलर होके भी नाम अलग क्यों है. फाइन. फिर फोर्थ देखिए, एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे का बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, फिर भी वो साथ में रहते. पैरासाइटिज्म देखिए, फायदा नुकसान. प्रिडेशन फायदा नुकसान. कैनिबलिज्म, एक को फायदा दूसरे को लॉस. competition, दोनों को loss. So these are the ways organisms interact. Now each one is a topic. मैंने आपसे कहा हर साल एक question आता है. You may get write short note on predation. Write short note on mutualism. So let's go in detail. Okay. So we are here. ऊपर सबसे पहले एक वर्ड है जो हमारे बुक में भी एक ही वर्ड है, उसके बाद डिटेल में नहीं है. न्यूट्रलिज्म. टेबल में न्यूट्रलिज्म कहीं भी नहीं है. कैन यू सी दैट? यस, बिकॉज दैट इज 0-0 इंटरेक्शन.
That means two organisms are living together, but they are not affecting each other at all. ना benefit हो रहा है, ना loss हो रहा है, कुछ भी नहीं. But such interactions are less and not to be studied because there is no change only, there is no effect only. So we are going in more detail. Positive interaction, negative interaction, positive negative interaction. So positive में तीन कैटेगरी आ गई, म्यूचुअलिज्म, कमेंशियलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन. ओके, प्रोटो कोऑपरेशन. नेगेटिव में कंपटीशन, अमेंशियलिज्म. पॉजिटिव नेगेटिव, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म. या वहां पे सी रीड कर रहे थे, प्रोटो कोऑपरेशन. फाइन क्लास, वी गो टू ईच वन इन डिटेल. ये फिर से वही टेबल था. वी गो इन डिटेल. म्यूचुअलिज्म, मैं किस टाइप में हूँ क्लास? पॉजिटिव का फर्स्ट वाला म्यूचुअलिज्म. डायरेक्टली बिगिनिंग विद एन एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल we did in 11th standard also. Lichens, lichens, you can also call it lichens, is a interaction between algae and fungi. Between algae and fungi. Now दोनों क्या कर रहे हैं? Everybody knows algae is photosynthetic. So algae makes food and gives it to fungus. Fungus is non-photosynthetic, but it has a very good cell wall. So it covers the algae which is very delicate one. Fungus provides protection. Fungus के पास होते हैं hyphae, network of hyphae. उससे वो better absorption. So what is algae getting? Protection and absorption. What is fungus getting? Ready-made food, जो fungus नहीं बना सकता. So both are benefited. It is coming under mutualism. Now see your lichens. This is a type of lichen growing on bark of a tree. अभी ध्यान से देखिए, इसको देख के you cannot say which is algae and which is fungi. They live so close, they are so connected that if you try to separate them, algae and fungus will die. So generally mutualism में क्या होता है? Both are very closely connected. It is a type of obligatory. Obligatory मतलब compulsory. उनको हमने अगर हटाया तो they may die. They may not be able to survive. So here lichen, both algae and fungi together, but हम differentiate नहीं कर पा रहे. They live in such close connection. Now look here. ये भी another type of lichen है. Again देखिए, you cannot find where is the fungus and where is the algae. They are very closely connected. और यहाँ पे अभी हमने डायग्रामेटिक दिखाया. ये डायग्राम बुक में भी है. ठीक है, ऊपर जो पूरा येलो कलर का नेटवर्क है ऊपर और नीचे, वो पूरा फंगस. और वो जो फाइब्रस दिख रहे हैं उसके हाइफे, दे आर ऑल स्प्रेड अप एवरीवेयर अराउंड द algae. What is it giving? Protection. Plus it absorbs water, nutrients and gives it to algae. जो green color के दिख रहे हैं, they are algae. They do photosynthesis and provide food to the fungus. दोनों को फायदा. लेकिन डायग्राम से आप अंदाजा लगाए, they are very close, very closely connected. So it's a very clear cut example of mutualism. ठीक है, second example देखेंगे, flowers and pollinators. We know flowers have anther. Anther के अंदर होता है pollen grains. Correct? That pollen grain is male reproductive part and it should reach the ovary. Ovary is female reproductive part. Correct? I repeat, flowers has anther, male part. Anther के अंदर क्या है? Pollen grain. दूसरा important part है ovary, female part. उसमें क्या है? Egg. We have to bring them close. So how will pollen grain go to the ovary? Many times you have to depend on external agents called pollinators, like insect, like birds, like snail, like snake. बहुत सारे pollinators होते हैं. हम human being भी एक type of pollinator.
आप भी पोलन ग्रेन उठा के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में डाल सकते, लेकिन इंसेक्ट्स फ्री में ये काम क्यों करेंगे? Why will they be attracted? So keep in mind, pollinators को फ्री मिल रहा है नेक्टर, फ्लावर के अंदर है वेरी स्वीट न्यूट्रिशियस जूस and that is called the nectar. Insect is getting that nectar. Now class, insect is very small organism, so even if it gets drops of nectar, it is quite enough for that insect. So it is visiting flowers. You must have seen butterflies, you must have seen honey bees. वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाते हैं collecting nectar. Sometimes the pollen grain is also eatable. Directly pollen grain खा सकते हैं, जैसे bats होते हैं. Bats eat pollen grain also. So bat is also a pollinator. तो flower क्या offer कर रहा है? Nectar and pollen grain as food. और flower को क्या मिल रहा है? The pollen grain is transferred to the other flower. So it is getting benefit. किसको benefit हो रहा है? दोनों को. Now ये benefit इतना important है that both the flower and insect, they adjust to each other so much that they evolve together. Evolve together मतलब flower is changing itself so that it becomes more suitable for insect. Insect is also changing itself so that it becomes more suitable for the flower. That is called co-evolution. Class, co-evolution एक दिन में नहीं होगा, हजारों साल में होगा. ओके, उसको टाइम लगेगा. बट हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे फ्लावर्स और इंसेक्ट ने इतना अच्छा एडजस्टमेंट किया है दैट दे आर मेड फॉर ईच अदर. आपको दो एग्जाम्पल नीचे दिखे, यूका फ्लावर, मैं पिक्चर दिखाती हूँ अभी, और मॉथ and fig and wasp. Yucca flower is not a common flower here. It's a Mexican flower. वहाँ का national flower है, काफी बड़ा flower होता है. Okay? और उस flower में रहता है एक moth. Moth is an insect. उसका नाम भी रखा है yucca moth. Both are so dependent that they've adjusted well. I'll show you the dependency. दूसरा example है fig. अंजीर. अंजीर आप खाते होंगे. Correct? It's a fruit. अंजीर का बड़ा पेड़ होता है. ड्राई फ्रूट्स में ज्यादातर रिंग की तरह होता है अंजीर, फिग, और उसको भी एक इंसेक्ट हेल्प करता है, वास्प. नाउ सी द पिक्चर. आई गो टू द इमेजेस. यू कैन सी हियर इंसेक्ट एंड फ्लावर. एक सिंपल पिक्चर है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ये हमारा फिग है, अंजीर. आई होप इसको देख के शायद याद आया हो आपको. दिस इज फिग. आपको जो पूरा रेडिश पोर्शन, ध्यान से देखिए, आई जस्ट मार्क इट, ये वाले, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स. इतने सारे, ठीक है. इफ यू ईट फिग यू विल सी, फिग में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है छोटी सी कॉर्नर, और वहां से इंसेक्ट अंदर आते, वहां से इंसेक्ट अंदर आते. देखिए यहाँ. ओके, आई जस्ट गो टू द पेन एंड इरेज दिस. ये देखिए, यू कैन सी, देखो, दिख रहे आपको छोटे छोटे इंसेक्ट अंदर आए हैं, और वो ब्राउनिश कलर का पूरा लेयर है. दोज आर द फ्लावर्स. नाउ दिस इंसेक्ट transfers pollen grain. I'm talking about when it was a flower. Okay, from there to the next flower, what is insect getting? Ready-made food. वहाँ अंदर बहुत सारे flowers हैं which the insect larvae are going to eat as food. Now class, you will say फिर तो flowers की death हो जाएगी. नहीं, बहुत सारी death हो जाएगी, but lots of flowers will grow into entire fruit. Means you are losing something, but the benefit is more. Because of that pollination, some ovaries in the flower will be fertilized and it will become a fruit. ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक ओपन फिग दिखा है with so many insect, while here this image you can see a cut out fruit जो पूरा डेवलप हो चुका है. Okay, this is in fruit form absolutely. ये वाला कैसा है, जो पूरा फ्रूट डेवलप नहीं हुआ है, ब्राउनिश ज्यादा दिख. So the flowers in fig are arranged in such a way that insect can enter. They are all around. Then insect lays egg. It is getting food.
along with that pollen grain transfer हो रहा है, and fig develops into a fruit. Who is doing it? Wasp. याद रखो wasp. Okay, wasp is the name for a group of insect, एक category में आता है, ठीक है. Now अब देखिए yucca. आप ये फ्लावर देख रहे हैं, दिस pale lavender color flower. This is yucca. I think this gives a better view. यहाँ पे ऊपर एक इंसेक्ट दिखाई दे रहा है हमको, ये रहा इंसेक्ट, करेक्ट, यू कैन सी इट. ये रही ओवरी, करेक्ट. फ्लावर आप देखिए कितना बड़ा है, ये उसके फ्यू पेटल्स हैं. सो इंसेक्ट कैन इजीली गो इनसाइड द फ्लावर. यस, when it goes inside, what it does is it drills a hole. It is going to drill a hole here and go inside the ovary. ओवरी के अंदर क्या है, बहुत सारे ओव्यूल्स. इंसेक्ट विल ले एग्स इनसाइड. इट इज गोइंग टू, देखो बहुत सारे इंसेक्ट दिख रहे हैं आपको, करेक्ट. सो इट इज गोइंग टू ले एग इनसाइड द ओवरी. आफ्टरवर्ड्स insect goes out, collects pollen grain and brings it to the ovary. So when it brings pollen grain, those pollen grains are food for the larva of insect. Those pollen grains are food. Insect ने क्या किया, बहुत सारा egg लेके उसमें से छोटे छोटे larvas बाहर आएंगे. वो क्या खाएंगे? They are going to eat the pollen grain. But some pollen grain will fertilize the ovule also. So the ovule will be fertilized and it will become a fruit. Insect को क्या मिला? A very safe place to lay egg. Very well protected ovary to lay eggs where the larva can grow. Flower को क्या मिला? Free pollination. जो pollen grain आए उसमें से कुछ use हो गए pollination के लिए. Correct? They could fertilize the ovary. So both yucca moth, this is yucca moth, and the yucca flower, ये yucca moth है और ये yucca flower have evolved in such a way that they cannot reproduce without each other. They cannot reproduce without each other. So this is yucca moth and yucca flower. Example of mutualism. तो कितने एग्जाम्पल हमने देखे? 2. Now 2 क्यों क्लास? Because 2 हमारे बुक में क्लियरली दिए हुए. If you write any other example, suppose you are writing about bacteria living in root of plant. Rhizobium अगर आपको याद है तो rhizobium क्या देता है? नाइट्रोजन. और rhizobium को मिलता है फ्री शेल्टर, करेक्ट, एंड फूड. चलेगा. You can change the example. If you write any other valid and correct example, you will be given right. Fine. But in case ये दूसरा एग्जाम्पल, मैंगो और ऑर्किड अभी बाद में आएगा, नेक्स्ट में आएगा, ठीक है, म्यूचुअलिज्म में नहीं आएगा. हियर व्हाट इज द बेनिफिट? हियर दोनों को फायदा होना चाहिए. बट सपोज क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन म्यूचुअलिज्म विद हेल्प ऑफ यूका फ्लावर, तो आपको फिर यही एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा. बट इन केस दे से विद एनी एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, यू कैन पिक अप एनी एंड राइट. ये 2 टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, ये 2 टेक्सुअली मेंशन्ड है. को-एवोल्यूशन टर्म भी मेंशन्ड है कि एवरी इंसेक्ट एंड द फ्लावर इट इज कनेक्टेड टू, दे ट्राई टू रिलेट, they try to become friend of each other and they evolve in that. So this is about mutualism. कितने मार्क्स का रहेगा क्लास? मैक्सिमम 3 मार्क, usually 2 marks, because you will define mutualism, pick up one example and explain. Getting it? So 2 marks के लिए easy question. ये लास्ट ईयर तक भी था वो, ठीक है. This is not new. Now one more term I would like to add here is, बहुत बार म्यूचुअलिज्म के लिए टर्म यूज होता है सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस चलेगा, इन केस यू आर यूजिंग इट चलेगा. सिम्बायोसिस इज अ वेरी वाइड टर्म. सिम्बायोसिस के अंदर एक टर्म आता है म्यूचुअलिज्म, बट इन केस यू आर यूजिंग सिम्बायोसिस, नो प्रॉब्लम, चलेगा. मेड फॉर ईच अदर, बेनिफिट ऑफ बोथ. इट इज कॉल्ड गिव एंड टेक रिलेशनशिप, लेना देना दोनों को फायदा, ठीक है. Now we move ahead. You have seen the images also here.
इमेजेस से थोड़ा आपको याद है। अब आ गया कमेंशियलिज्म। ओके, कमेंशियलिज्म में पॉजिटिव में ही है हम अभी भी। एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान। आई रिपीट, वन इज बेनिफिटेड, अदर इज नाइदर बेनिफिटेड nor loss. Commensalism, in board exam it came, define commensalism. Commensalism is an interaction, it is an association between two organisms where one is benefited, the other is neither benefited, neither harmed. Neither benefited nor harmed. 3 एग्जाम्पल डायरेक्टली लिखे हुए हैं। Orchids, epiphytic root, I'll explain it. Sea anemone, clownfish, and egret and kettles. Okay, so we are going to move ahead. इसमें आप 3 और पॉइंट देखेंगे, एक सपोर्ट के लिए है, एक प्रोटेक्शन के लिए है, और एक फूड के लिए। क्लियर? सो वी विल बी गोइंग टू ईच वन ऑफ देम। तीनों टेक्स्ट बुक में है, मैं एक 4th वन पे भी जाऊंगी। ओके, सो कमेंशियलिज्म किसको फायदा हो रहा है? एक को। दूसरे को नुकसान हो रहा है? नहीं। फायदा हो रहा है? नहीं। अदर वन इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है क्लास? नाउ लुक, orchids, very beautiful flower, you must have heard about orchids, correct? ज्यादातर बुके ऑर्किड के फ्लावर के भी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, वेरी कलरफुल। लेकिन ऑर्किड्स की एक प्रॉब्लम है, उनकी रूट्स बहुत वीक होती हैं। सो देयर रूट्स आर वीक। कौन सी रूट्स? नॉर्मल रूट्स। एंड दैट इज व्हाई टू गेट सपोर्ट एंड मॉइस्चर दे ग्रो एपिफाइटिक रूट। मतलब प्लांट सुंदर तो है बट वो कमजोर है, इट कैनॉट एब्सॉर्ब लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। सो व्हाट इट डेवलप्स? एपी, एपी मतलब ऊपर, फाइटिक मतलब प्लांट, प्लांट के ऊपर की तरफ ग्रो होने वाली रूट। लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड के मॉडिफाइड रूट में था। ओके, एपीफाइटिक रूट, वैंडा ऑर्किड लिखा था उधर। तो ये रूट्स ऊपर ग्रो होती है। नाउ व्हाट दीज रूट्स डू? दे गेट attached to any other plant, especially mango tree हमने बहुत बार देखा है। ये अभी आप कोई भी ट्री ले लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑर्किड अटैच्ड है, एपिफाइटिक रूट। ठीक है, तो ये क्या ले रहे हैं उससे? सपोर्ट। दूसरा, एयर हैज मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी। ये रूट्स वो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी किससे ले रहे हैं? एयर से। इज द प्लांट एट लॉस? क्या उन्होंने प्लांट के अंदर से अंदर से वाटर लिया है? नहीं। क्या उन्होंने प्लांट के अंदर से फूड लिया? नहीं। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट लिया ऊपर से, बट इज ऑर्किड अ बिग ट्री कि उसके सपोर्ट से प्लांट झुक गया है, टूट गया है? नहीं। सो अ बिग ट्री विच में सपोर्ट ऑर्किड विल नॉट हैव एनी लॉस, बट ऑर्किड इज गेटिंग फ्री सपोर्ट, ग्रो होने के लिए बेनिफिट है। करेक्ट? दूसरा उसको क्या मिल रहा है? मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। एपिफाइटिक रूट है तो वो चारों तरफ फैल सकता है एंड इट कैन टेक मॉइस्चर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कमेंशियलिज्म। ऑर्किड एपिफाइटिक रूट, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर सपोर्ट एंड फॉर गेटिंग मॉइस्चर। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी क्लियर। एपिफाइटिक रूट्स ग्रो अबव, लेकिन दे आर नॉट पैरासाइटिक। वो याद रखना, पैरासाइटिक बाद में आने वाला है। वो पैरासाइटिक नहीं होते, कोई हार्म नहीं होगा। और ऑर्किड छोटा सा प्लांट है, बहुत बड़ा नहीं है कि उसका वजन बहुत ज्यादा, कुछ भी लॉस नहीं। सो दिस इज वन एग्जांपल। हियर यू कैन सी केटल्स एंड एग्रेट्स। ये हमने बहुत बार कॉमनली हम देखते हैं कि ग्रेजिंग एनिमल, जो भी एनिमल घास खाते हैं, बड़े एनिमल्स, करेक्ट, काउज हो, कोई शीप हो, जब वो मूव कर रहे हैं ग्रास में, उसके ऊपर बर्ड्स आके बैठ जाते हैं। वन एग्जांपल इज एग्रेट्स। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेनिफिट व्हेन द काउ और द बफेलो और द डियर, whichever grass eating animal it is, वो जब मूव करेगा, इट विल वॉक, तो ग्रास में क्या होगा? मूवमेंट। सो जो नीचे इंसेक्ट्स है, दे विल गेट डिस्टर्ब्ड and they will fly up. It's like आप एक मच्छर को मारने जाते हो तो वो कैसे उड़ जाता है,
तो इमेजिन काउ इज वॉकिंग इन ग्रास, जो ग्रास के बीच में इधर उधर इंसेक्ट्स है, दे विल फ्लाई अप, ऊपर कौन बैठा है, एग्रेट्स, उनको इजीली फूड मिल रहा है, वो उसको कैच करके खा जाएंगे। अदरवाइज उनको नीचे जाना पड़ता है, ग्रास में ढूंढना पड़ता है इंसेक्ट किधर है, करेक्ट, वो ग्रास उनके आईज में जा सकता है, सो वो सब प्रॉब्लम से वो बच जाते हैं। They just sit on the back of that insect, on the back of the cattle. They are moving around. आराम से फ्री फूड मिल रहा है बिना सर्च किए। क्या काउ को कोई लॉस हुआ? नहीं। यू नो बर्ड्स आर वेरी लाइट, तो उनका वजन भी नहीं होता, उनकी बोन्स न्यूमेटिक होती है, हॉलो होती है, तो काउ को कोई नुकसान है नहीं। व्हाट इज इट? कमेंशियलिज्म। बेनिफिट किसको हुआ? बर्ड्स को, जो उसके ऊपर बैठे। ऐसे मिला, सर्च नहीं करना। What is the loss to cow? No loss. What is the benefit? No benefit. There is no benefit, no loss to the cow, but benefit to the bird. So this is egrets and the kettles. This you see quite often, correct? Up class, 1 minute. यहाँ पे देखिए सी एनीमोन। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, बहुत ध्यान से। आई जस्ट मार्क इट आउट, बहुत ध्यान से देखना है। आई टेक पेन, या नाउ लुक एट क्लास। ये हमारा सी एनीमोन है, करेक्ट, ध्यान से देखना है। हाइड्रा पता है आपको, सिलेंट्रेट्स वो ग्रुप में आते हैं, टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं ना उनके, ये हमारा सी एनीमोन है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है ये एक शेल है, ये एक शेल है, खाली शेल, उसके अंदर एनिमल नहीं था। अब आपको तो यहाँ पे लेकिन एनिमल दिख रहा है। दिस इज अ क्रैब, दिस इज अ क्रैब, वेरी फेमस एज हर्मिट क्रैब। क्या नाम है उसका? हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब क्या करता है? आई रिपीट 3 थिंग्स फॉर यू अगेन, दैट वी हैव सी एनीमोन विद अस। ओके, व्हाट इज सी एनीमोन? इट्स अ सिलेंट्रेट, ये रहा, ठीक है। हमारे पास एक खाली शेल था, शेल के अंदर कौन जाके बैठ गया? ये क्रैब, थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ क्लास, हर्मिट क्रैब क्या करता है? वो खाली शेल्स के अंदर चला जाता, इट इज हाइडिंग इन, ओके। व्हाई? व्हेन द क्रैब इज मूविंग ऑन द सैंडी शोर्स, बर्ड्स उसको कैच कर लेते हैं और खा जाते। तो जब वो शेल के अंदर होता है वो प्रोटेक्टेड है, प्लस शेल के अंदर बर्ड्स के लिए शेल ब्रेक करना इजी नहीं, सो हर्मिट क्रैब आराम से उसके अंदर रहता है। अब ये सी एनीमोन इधर क्या कर? सी एनीमोन ग्रोज ऑन द शेल, इट गेट्स अटैच्ड। हाइड्रा कैसे अटैच होता है, वैसे ये भी अटैच हो जाता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हर्मिट क्रैब इज मूविंग ऑन द शोर, ठीक है, शेल के साथ। शेल के ऊपर कौन है? सी एनीमोन। सी एनीमोन इज गेटिंग अ फ्री राइड, वो भी शेल के साथ मूव कर रहा है फ्री में, और उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ट्रैप एंड कैच मोर फूड। हर्मिट क्रैब सी एनीमोन के लिए मूव नहीं कर रहा है, वो अपना फूड ढूंढ रहा है, वो कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है, बट वो किसके अंदर है? शेल के अंदर। शेल के ऊपर कौन है? सी एनीमोन। सो हर्मिट क्रैब is indirectly helping सी एनीमोन को बेनिफिट हुआ। व्हाट इज द बेनिफिट? वो फटाफट मूव हो गया, अदरवाइज वो मूव नहीं हो सकता इतना फास्ट। एंड व्हाट इज इट गेटिंग? अपॉर्चुनिटी टू कैच मोर फूड बाय टेंटिकल्स, दैट इज मोर इजी। हर्मिट क्रैब इज एट लॉस? नो। इज एट बेनिफिट? नो। सी एनीमोन से उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, सो बोथ आर देयर टुगेदर, एक को फायदा, other one is at no loss but no benefit also. Are you understanding? Sea anemone and hermit crab, commensalism, ठीक है। अब आ जाइए पीछे, हमने क्या किया? सी एनीमोन, हर्मिट क्रैब, एग्रेट एंड केटल्स, और ऑर्किड्स एंड हायर प्लांट्स, करेक्ट। नाउ क्लास, अपना सेकेंड एग्जाम्पल फिर से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सी एनीमोन प्लस क्लाउन फिश। एग्जाम्पल चेंज हो गया, मैंने उधर हर्मिट क्रैब दिखाया। नाउ अंडरस्टैंड क्लास, बुक में दोनों है। क्लाउन फिश क्या करती? छोटी सी फिश है, वेरी कलरफुल एंड ब्राइट,
सो wherever there are lots of sea anemone, मैंने कहा वो हाइड्रा की तरह उसके पास टेंटेकल्स हैं. टेंटेकल्स क्या करते हैं? स्टिंगिंग करते हैं. व्हाट डू टेंटेकल्स डू? दे स्टिंग. क्लाउन फिश क्या करती है? सी एनिमोन जहां पे बहुत सारे, वहां जाके रहती है. ओके, इट गोज इन दैट ग्रुप. सो इफ एनी लार्जर फिश और अदर ऑर्गेनिजम्स आर ट्राइंग टू ईट द क्लाउन फिश इज दैट रेड ब्लैक पैच वाली फिश. ऑफन अपने फिश टैंक वगैरह में लोग रखते हैं, ऑरेंज ब्लैक लाइंस होती है उसके ऊपर. Okay, image just now मेरे पास नहीं है. I'll send you the image. Okay, so that clownfish is attractive, visible. So many fishes are eating clownfish. So what happens when they go near? sea anemones के tentacle से उनको hurt होता है. उसमें कौन से सेल है? Stinging cell. तो वो sting होते हैं, इसीलिए वो sea anemone के नजदीक नहीं आते और clownfish चुपचाप उधर आराम से बैठी है. So it is protected. Are you understanding? ये अलग है और hermit crab और sea anemone अलग है. Are you understanding? Sea anemone and clownfish, protection. Who is protecting? Sea anemone. Protection किसको मिला? Clownfish. ठीक है? Is that clear? Very clear. दूसरा हमने और एक लिया hermit crab वाला और sea anemone वाला. करेक्ट? हाँ, अभी किसी ने लिखा म्यूचुअलिज्म दिया हुआ है. करेक्ट, वो भी राइट है. वहां पे प्रॉब्लम क्या है? दोनों में जाता है, पर हमारे बुक में सी एनिमोन लिखा है, इसलिए मैंने म्यूचुअलिज्म में आपको एक्सप्लेन नहीं किया. अब म्यूचुअलिज्म कैसे है? बिकॉज यू मेंशन, आई टेल यू. क्लाउन फिश वहां जाती है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म भी उधर आते हैं, तो सी एनिमोन को फिर से ज्यादा फूड मिलने का बेनिफिट. बट हमारे बुक में कमेंशियलिज्म में डाला है. So I didn't want it to confuse you. So I did not mention it in commensalism. ठीक है? अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर का लास्ट पेज देखेंगे, लास्ट में उन्होंने पिक्चर दी है क्लाउन फिश और सी एनिमोन की. ओके, और अनफॉर्चुनेटली हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन की पिक्चर नहीं दी है, वर्ड भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है. आई डोंट नो व्हाई. और पिक्चर दी है क्लाउन फिश और सी एनिमोन की, इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर दिया है. बट आई हैव मेंशन बोथ इन कमेंशियलिज्म. इफ यू आर आस्किंग मिस इज इट म्यूचुअलिज्म आल्सो? यस, इट इज म्यूचुअलिज्म आल्सो. अगर दोनों को फायदा हो रहा है तो सी एनिमोन को फूड कैचिंग के लिए ज्यादा फूड का चांस. आर यू गेटिंग इट? बट हम अगर कमेंशियलिज्म में लिख रहे हैं तो सी एनिमोन का बेनिफिट नहीं बताएंगे. हम किसका बेनिफिट बताएंगे? क्लाउन फिश का. अगर आप हर्मिट क्रैब लिख रहे हैं तो सी एनिमोन का बेनिफिट है, क्रैब को बेनिफिट नहीं. ठीक है क्लास? इसीलिए मैंने आपको एक इमेज दिखाई और एक राइटिंग में दिखाया. और बुक में क्या है? इमेज क्लाउन फिश की है और राइटिंग में हर्मिट क्रैब की तरह क्वेश्चन में, पूरे बुक में नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में. सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. बट बुक में कहीं पे भी म्यूचुअलिज्म नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई आई डिडंट ब्रिंग इट हियर. इज दैट फाइन? But if you are asking, yes, it can go in mutualism also. ठीक है? Is it very clear? So commensalism में 3 example: orchid, large plants who are strong ones, egrets and kettles. Yes. अगर आप गूगल करेंगे तो इसमें भी म्यूचुअलिज्म दिखता है. जो एग्रेट्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो केटल्स के ऊपर के इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो इंसेक्ट को वो वर्म्स और निकल जाते हैं ना. इमेजिन अ बर्ड pecking and removing the insects and worms on the body of kettles. तो वहां पे भी म्यूचुअलिज्म दिखता है, लेकिन अगेन हमारे बुक में कमेंशियलिज्म में डाला हुआ है. सो आई डिडंट मेंशन. इज दैट क्लियर? ये हमारा हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन. आर वी क्लियर विद दिस? वेरी श्योर, वेरी फाइन. थर्ड एग्जाम्पल प्रोटो. यहाँ पे क्लास स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, मेरा वहां पे डी प्रिंट हो गया. यू विल मेक इट PROTO. प्रोटो कोऑपरेशन. बेनिफिट ऑफ बोथ. मैंने कहा था बेनिफिट ऑफ बोथ. 2 जगह दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है? आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. प्रोटो कोऑपरेशन अब इस साल आया है, न्यू वर्ड है, लास्ट ईयर तक नहीं था. पहला पॉइंट देखिए,
नॉट ऑब्लिगेट, मतलब लाइकेंस की तरह वी डोंट हैव टू लिव वेरी क्लोज एंड टुगेदर और सेपरेट किया तो वी विल डाई. नो, द ऑर्गेनिजम्स कैन लिव ऑन देयर ओन ऑल्सो, दे कैन बी सेपरेटेड. देयर इज नो कंपल्शन. करना है तो रहो साथ में, नहीं रहना तो भी कोई बात नहीं. इट इज नॉट अ डू और डाई सिचुएशन. जैसे यूका मौत कैसा था, नहीं उसको वो ही फ्लावर चाहिए. यूका फ्लावर कैसा था, उसको वही मौत चाहिए. सो इट वाज वेरी वेरी क्लोज. यहाँ पे ऐसा नहीं, नहीं भी है तो भी चलेगा, बेनिफिट हो रहा है ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम साथ में रह लेते. टिपिकल एग्जाम्पल, क्रोकोडाइल एंड प्लोवर. प्लोवर इज अ बर्ड हियर, क्रोकोडाइल. क्लास इसकी इमेज नहीं है, प्रोटो कोऑपरेशन का बुक में एग्जाम्पल भी नहीं है. यू विल प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर. ओके, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वर्ड. क्रोकोडाइल और बर्ड्स ये साथ. हाँ बोलिए. मैम वो इस मीटिंग का टाइम खत्म होने आ हेलो. गया. Send another link to everybody. You can join there. Okay, so I'll cut it. Okay, okay, okay. I'm going back. Class, we are joining the next link. Okay.